enterprises. We completed our public enterprises topic. Types of public enterprises, we already completed about that. In today's class, we are going to understand that what are the advantages and disadvantages of public enterprises. ठीक है, disadvantages and advantages of public enterprises आज हम complete करेंगे. Okay, so before that, who is going to tell me about the joint stock company form of management? Who is going to tell me about it? Going to tell me that what is the meaning of public enterprises? Raise your hand. What are the public enterprises? What is the meaning of that? Yes, Gaurav. Yes, ma'am. A public enterprise is industry which is governed by a government. Okay. And anything else you want to tell? Okay. Yes, Pratyay. Pratyay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me. Ma'am, the public enterprises refer to enterprise which are owned and managed by the government, and either it is maintained by the central or the state government. It is controlled by both of the government. There are many. So, public enterprises क्या है? Basically, it is owned, controlled, managed by central government, managed by government, or it can be the central government, it can be the state government, and it can be the local government. Local government के भी जो भी organization होंगे, वो भी आपके public enterprises में आ जाएंगे. ठीक है? तो it's not only the central or state, it is both, all three. ठीक है, जितना भी डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है आपके गवर्नमेंट का, जैसे कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपका स्टेट गवर्नमेंट और आपका लोकल गवर्नमेंट. ठीक है. ओके, हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द फीचर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस? फीचर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. व्हाट अबाउट द अदर्स? फीचर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. Yes, Anisha. Yes, ma'am. Management and accountability. Accountable to the people. Separate funds. Profit. State control. These are okay. Very good. Who is going to tell me about the features? Yes, Pratyay. Ma'am, बता दी सब अनीशा. 6 features था. So, yes. Who is going to tell me what is the meaning of legal status and features? Yes, Sagar. Yes, Sagar. Legal status का मतलब क्या है? I think I have no idea. अलग अपना separate legal entity है, separate legal status है. तो सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने, जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हुआ, और जो सेंट्रल के आ रहा है वो सेंट्रल के अंदर हुआ. सबका अलग अलग लीगल एंटिटी है. लीगल स्टेटस का मतलब यहाँ पर ये है कि बेसिकली इसको जो स्टैब्लिश किया जाता है वो कई बार लॉ को बना करके किया जाता है. इट मीन्स को एक्ट को लाया जाता है, उसके बाद इसको स्टैब्लिश किया जाता है. ठीक है. बहुत सारे ऐसे आपके यहाँ पर इंटरप्राइजेस हैं जो गवर्नमेंट के बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिसको स्टैब्लिश किया जाता है फॉर द सोशल वेलफेयर एंड फॉर डेवलपमेंट पर्पस. तो ये इसी वजह से एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. इसका कोई भी रिलेशन, जैसे कंपनी में क्या सिचुएशन होता है कि आपका सेपरेट लीगल एंटिटी है तो मेंबर्स का कंपनी के ऊपर कोई भी चीजें आएंगी तो दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द मेंबर्स. तो सेम थिंग इज विद दैट, मतलब इसमें भी आपका सेम होगा कि इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. तो ये इंटरप्राइजेस एक कंपनी की तरह काम करते हैं. ठीक है. तो ये होगा इसका लीगल स्टेटस. Okay, and advantages and disadvantages of public enterprises. So first advantage of the public enterprise is use of profit. Use of profit. तो यहाँ पर कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं जैसे आपका पोस्ट और टेलीग्राफ हो गया, are not running for earning profit, while other enterprises like Hindustan Machine Tools हो गए or as in India run for the making profit. But the profit earned by them are utilized for improving service rendered for further expansion of their activities. So in short, जो इनका utilization होता है profit का public enterprises का, that is not for the commercial purpose, but it is for the social welfare purpose, or it is for the बोल सकते हैं कि public, right?
तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आप अर्न करते हो, जैसे कि बाकी जो प्राइवेट कंपनीज है वो प्रॉफिट अर्न करती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ और प्रॉफिट अर्न करना चाहती हैं या फिर वो अपनी ग्रोथ के बारे में सोचती हैं। यहाँ पर प्रॉफिट का जो यूटिलाइजेशन है वो पहले सोशल वेलफेयर के लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है, और उसके बाद कोई और एक्टिविटीज है जैसे एक्सपेंशन एक्टिविटीज और ये सब चीजें के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर जो यूटिलाइजेशन है प्रॉफिट का, दैट इज फॉर इम्प्रूविंग सर्विसेज, कि ज्यादा बेटर से बेटर हम प्रोवाइड कर पाए पब्लिक को सर्विस। तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन, बाकी कंपनीज जो कर रही हैं जो प्रॉफिट का, वो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसका अलग है, डिफरेंट है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? From which we get return something. Investment can be the long-term investment or short-term investment in which we are paying some amount, and for that we are getting it back with interest. Means it is in the profitable, आपका वो बन जाएगा वो amount. Like example में अगर आप 10,000 invest करते हो, you will get maybe 12,000 or 13,000 after a period. So for that, why we are doing such kind of thing? For getting the interest or profit. Because अगर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कैश पड़ा रहेगा तो इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज आफ्टर 1 or 2 years, but if we invest it either in the bank or either by purchasing the mutual fund or something, so it might be possible that after some time we'll get it return with interest or with profit. Okay, so nature of investment की अगर बात हो रही है तो बहुत सारे से फील्ड हैं in which private sector will not invest either because it is too risky or because the yield on such investment is too low and is spread over a very long period. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं जो किसी चीज में या किसी फील्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है किसी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, किसी फंड में इन्वेस्ट करना, मतलब किसी बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना कई बार प्राइवेट कंपनीज नहीं चाहते हैं बिकॉज उसमें रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। या फिर जो यील्ड है, यील्ड मतलब जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा उस पर जो बाद में फाइनली पैसा मिलेगा वो काफी ज्यादा लो है और इसके लिए आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना है। तो कई बार इन सारे डिमेरिट्स की वजह से आपके जो प्राइवेट कंपनीज है दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, लाइक कंस्ट्रक्शन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, लिंकिंग कोई प्रोजेक्ट्स है उनके लिए। तो मतलब जहां पर आपके प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करती है, जो सोशल वेलफेयर के लिए प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे आपके कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, डैम्स का काम चल रहा है, तो इन सब चीज में इन्वेस्टमेंट कौन करती है? आपकी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और इसमें प्राइवेट कंपनीज इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है बिकॉज उनको लगता है इससे प्रॉफिट उनको बहुत ज्यादा हाई नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट का मेन रीजन मैंने पहले ही बताया, प्रॉफिट अर्निंग, हाई इन्वेस्टमेंट, हायर यील्ड, ये सब चीजें उनके लिए मैटर नहीं करता है। तो इन सब चीजों में, इन सारे प्रोजेक्ट्स में, जो भी सोसाइटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, डैम्स बनना, रिवर प्रोजेक्ट्स, ये सब में आपकी इन्वेस्टमेंट कौन करता है? कौन इसको इन्वेस्ट करेगा? गवर्नमेंट करेगा। प्राइवेट सेक्टर कई बार इसमें इन्वेस्ट नहीं करती है, लेकिन हाँ प्राइवेट सेक्टर को कई बार कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसके लिए फिर वो अपना इन्वेस्ट करेगी जब उनको ये प्रॉफिटेबल लगेगा। तो चलिए, नेक्स्ट वन इज सफिशिएंट कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट इज सफिशिएंट कैपिटल। इट इज बोल सकते हैं कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर है मे नॉट बी इन द पोजीशन टू रेज इनफ कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट और एनी इंडस्ट्री। यानी कि जो प्राइवेट आपके जो कैपिटल है, प्राइवेट जो आपकी कंपनीज हैं, कई बार उनके पास इतना कैपिटल, इतना फंड होता भी नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को संभाल पाए या फिर उसको चला पाए, ठीक है, स्टार्ट कर पाए। कई बार ये चीज उनके पास होता ही नहीं है, मतलब कैपिटल इतना होगा ही नहीं उनके पास। तो ऐसे सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है, दे कैन रेज द फंड और कैपिटल फ्रॉम सो मेनी सोर्सेस, ठीक है, और इसके लिए वो प्रोजेक्ट जो है दैट इज ऑलवेज स्टार्टेड बाय द पब्लिक सेक्टर। So this is one of the reason we can say that this is because of this only it is started by the, okay,
सो सफिशिएंट कैपिटल का मतलब होता है जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हम इनिशियल रेट पे जो पैसे लगाने पड़ते हैं, इनिशियल टाइम पे जो पैसे लगाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू किया तो इनिशियली मुझे कम से कम 10 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, अगर मैं कोई छोटा मोटा भी बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो इन शॉर्ट द सेम सिचुएशन इज विद द यहाँ पर जो आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं वो इतनी सेल्फ सफिशिएंट, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती ही नहीं है। इन शॉर्ट ये समझिए कि बहुत रेयर ऐसी कंपनीज होती हैं प्राइवेट में जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो आपके वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में काम कर सके, इन्वेस्ट कर सके, चला सके। लेकिन यहाँ पर ये कैपिटल जो भी है वो सारा का सारा किसका लगा होता है, आपके गवर्नमेंट का, बिकॉज दे हैव सफिशिएंट कैपिटल as well as they have earnings from the taxes which they are collecting from the public. Okay, next one is public welfare. So I guess I don't need to elaborate this point. Public welfare तो सबको समझ में आ गया ही है, clear है कि state enterprises may work more efficiently than the private enterprises. मतलब जो state enterprises तो मतलब यहाँ पर सिर्फ state government की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आपके दो सब टाइप के जो गवर्नमेंट है उसकी बात हो रही है, सेंट्रल और स्टेट। तो यहाँ पर जो स्टेट एंटरप्राइजेस है वो कंपैरेटिवली बेटर और ज्यादा इफिशिएंटली वर्क करता है आपके प्राइवेट एंटरप्राइजेस से, बिकॉज इनका जो काम है पब्लिक यूटिलिटी, और पब्लिक यूटिलिटी मतलब जो इन लार्ज पब्लिक यूटिलाइज करता है। जैसे हम लोग सबको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर फैसिलिटी चाहिए, रोड चाहिए, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, डैम होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे ऑफिसेस होने चाहिए, म्युनिसिपल पार्क्स होने चाहिए, राइट, कॉलेजेस, स्कूल्स। तो इन शॉर्ट वी अंडरस्टैंड दैट आप कह सकते हो कि ये जितनी भी सेक्टर्स हैं जिसकी मैंने अभी बात की वो सिर्फ और सिर्फ, चलिए, तो ये जितनी भी मैंने फील्ड्स बताई आपको, जितनी भी सेक्टर्स बताए, इसके लिए ज्यादातर आपकी स्टेट गवर्नमेंट यानी आपकी जो गवर्नमेंट है वो ज्यादातर इफिशिएंटली वर्क करेगी कंपैरेटिवली टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। और कई बार वो जो सर्विसेज देती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पार्क्स वगैरह में फ्री एंट्री होती है। लेकिन जहां अगर हम देखेंगे पब्लिक, अगर प्राइवेट कोई कंपनी है, इफ दे विल स्टार्ट गिविंग द सेम काइंड ऑफ सर्विसेज, दे आर गोइंग टू चार्ज हाई प्राइस फॉर दैट एज वेल, राइट। सो वी कैन से दैट जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है ये जितनी भी, ये ज्यादातर आपकी पब्लिक एंटरप्राइजेस कह सकते हैं, दे आर बेसिकली रनिंग दिस, ठीक है। और जो भी लेफ्ट ओवर बच गया वो प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से रन करती है। लेकिन कई बार ये चीज देखा गया है कि जो पब्लिक ये जो प्राइवेट कंपनीज है वो कई बार कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करती है, बिकॉज उनका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, पैसे कमाना है, ठीक है। तो हेंस वी कैन से दैट द गवर्नमेंट जो है दे आर बेसिकली गवर्नमेंट ऑन द मोनोपोली बेसिस टू सिक्योर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। समहाउ कुछ जो सेक्टर्स है गवर्नमेंट ने उसको अपने कंट्रोल में कर रखा है। मोनोपोली का मतलब क्या निगेटिवली नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जैसे इन लार्ज जो सर्विसेज पब्लिक यूज करती है अगर उसको प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया जाएगा तो इट माइट बी पॉसिबल कि आगे चल के उस सेक्टर से भी एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो जैसे रेलवेज है, तो रेलवेज बहुत सारे लोग यूज करते हैं, हम लोग भी ट्रैवल के लिए यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कुछ सेक्टर्स पे मोनोपोली राइट है जहां पर वो सिर्फ खुद उस सेक्टर को कंट्रोल करती है, प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल इंटरफेरेंस का मौका इसमें नहीं मिलता है। और ये मतलब एक तरीके से मोनोपोली फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एंड द पीपल है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया ये पॉइंट? सबको क्लियर हो गया? यूज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। थर्ड में सफिशिएंट कैपिटल, फोर्थ इज पब्लिक वेलफेयर, फिफ्थ वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब कितने लोग जानते हो आप लोगों में से? रेज योर हैंड, बताओ इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? एनी वन ऑफ यू? यस अनीशा? यस मैम। बोलो मैम, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स अपने बजट में हम लोग का जब प्रोडक्शन हो जाए, कम लागत में ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, कह सकते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है गुड। इकोनॉमीज ऑफ स्केल तब कोई भी कंपनी अचीव करती है जब वो काफी एक्सपीरियंस हो जाए और उसका जो वेस्टेज है उसके रिसोर्सेज का वो मिनिमाइज हो जाए, और साथ साथ में जब आप ज्यादा प्रोडक्शन करें तो आपका कॉस्ट जो है वो लो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पर जो पब्लिक इंटरप्राइजेस, जैसे आप एग्जांपल में ले लीजिए स्टील अथॉरिटी, ठीक है, स्टील अथॉरिटी जो है,
दे आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग अ लार्ज, मतलब जो स्टील प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा हाई है, सबसे ज्यादा इंडिया में उन्हीं के द्वारा ये प्रोडक्शन होता है स्टील, राइट। तो इन शॉर्ट वी कैन से that by producing the product in large, जो इंडस्ट्रीज है, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है, प्रोडक्शन उनका लार्ज है, इसी वजह से दे आर एबल टू एंजॉय द लार्ज scale of production, economies of large scale of production, in which their cost is comparatively very low and the production is very high. तो यहाँ पर जो पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं, जो ज्यादातर प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व हैं, जैसे मैंने बताया आपको सेल अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो आपकी कंपनी है, आपकी जो इंटरप्राइजेस है, PSU है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो स्टील का होता है, और स्टील का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होता है। तो इसी वजह से वी कैन से कि ये क्या करते हैं, दे आर एबल टू अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। तो इनके जो इंटरप्राइजेस हैं वो कई बार प्रोडक्ट को लो कॉस्ट में भी इसलिए प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक कंपनी के, पब्लिक आपके इंटरप्राइजेस के जो प्रोडक्ट हैं, बिकॉज उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लो हो जाता है बिकॉज ऑफ द लार्ज प्रोडक्शन और इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्लियर हो गई बात, समझ में आया सबको? एवरीवन क्लियर हो गया? हमेशा याद रखिएगा, जैसे आप ज्यादा एक्सपीरियंस बनेंगे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, आप काफी सालों से प्रोडक्शन करो, जैसे अगर आप स्टील प्रोडक्शन का काम करो और काफी सालों से अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो धीरे धीरे आप इफिशिएंट बनते जाते हैं, आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, और उसके बाद जब ये चीज, जब आप जो है आपने फिर आपका जो रिसोर्स का वेस्टेज था वो मिनिमाइज हो जाता है, कम टाइम पे या फिर कम रिसोर्स में ज्यादा प्रोडक्शन होने लग जाता है, तो यू आर एबल टू अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। So we already understand about the consumer protection. Consumer protection में हमने क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है? कौन बताएगा मुझे? Who is going to tell me that why consumer protection is important and why they are required to be protected? Who is going to tell me about it? Raise your hand. कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? क्यों प्रोटेक्शन जरूरी है कंज्यूमर को देना? कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना जरूरी इसलिए है बिकॉज ऑफ द UTP, अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी है बिकॉज ऑफ द सो मेनी अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस आर गोइंग इन द मार्केट, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द ब्लैक मार्केटिंग, फॉल्स गुड, डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट, फॉल्स प्रॉमिसेस, then hoarding, adulterations. So all these are the part of the spurious product. These are the part of the UTP, unethical trade practices, which is always going on in the market. So for protecting from these exploitative activities, we require to provide the protection to the consumer, right? तो यहाँ पर इसी के बारे में बात की जा रही है कि consumer interest and quality of goods. अगर हम प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें पब्लिक आपके एंटरप्राइजेस को, तो कहीं ना कहीं पब्लिक एंटरप्राइजेस आपको बेहतर प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी कंपैरेटिवली टू प्राइवेट सेक्टर। Why? Because they always, and even they are providing the better quality of goods with the reasonable price, which is affordable by the normal or common people, right? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि they always want to protect the consumer, they want to basically protect their interest of the consumer and provide the better quality of the product, which is not hazardous or harmful for the people, right? So this is the aim of the public enterprises. This is the benefit of that. They are always secure the consumers as well as they are providing the quality of goods to the consumers. Clear हो गई बात? समझ में आया? With reasonable price or with affordable price. Clear हो गई बात? समझ में आ गया? Clear है सबको? Everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Is labor relations. Labor relations. So no doubt that how we are able to run the enterprises or industries. Without labor, it is not possible to run these type of industries, right? या वो public enterprises हो, public industries हो, private companies हो, सब में labor की requirement होती है। तो यहाँ पर जो स्कोप है कन्फ्लिक्ट का वर्कर्स और पब्लिक एंटरप्राइजेस का बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उनको फेयर वेज प्रोवाइड किया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर वेज? फेयर वेज का मतलब है कि सही प्राइस, सही जो आप बोल सकते हैं, सही
कॉस्ट आपके वर्क का आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे एग्जांपल में अगर कोई एक मजदूर है, कोई एक वर्कर है, अगर वो 9 आवर्स काम कर रहा है तो मे बी ही विल गेट अ बेटर अमाउंट, बेटर प्राइस फॉर 1 डे वर्क। तो इन दैट सिचुएशन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फेयर वेज सिस्टम है। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा आपके बनाए हुए हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हो गया, आपका एम्प्लॉय वेलफेयर मतलब फंड, जो भी चीजें हैं आपके वर्कर्स, आपके बोल सकते हैं वर्कर्स के लिए बहुत सारे एक्ट्स बने हुए हैं आपके, तो इन सबको यहाँ पब्लिक एंटरप्राइजेस में फॉलो किया जाता है। और रिलेशन जो है आपके लेबर का और पब्लिक एंटरप्राइजेस का बेहतर रहता है, यहाँ पर कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है। तो इसी वजह से हमेशा वर्कर्स जो हैं वो ज्यादातर रहना चाहते हैं, बोल सकते हैं ना, दे आर बेसिकली मोर हैप्पी इफ दे आर वर्किंग इन द पब्लिक एंटरप्राइजेस बिकॉज दे आर एबल टू गेट द प्रॉपर अमाउंट और सैलरी as well as security and justice in service. So this is the reason their labor relationship बोल सकते हैं, labor relation is better with the public enterprises. The conflict can be arise, ये वाला situation that is very much minimum or very low, ठीक है? And even the workers are happy to work in the public enterprises because they are able to get the proper salary, proper wages, as well as there is security and justice in service. क्लियर हो गया सबको? एवरीवन? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर व्हेन अ कंट्री हैज अ फ्यू एंटरप्रेन्योर्स एंड द स्किल्ड लेबर्स लिमिटेड, द गवर्नमेंट मे सेट अप number of industries by inviting foreign skilled laborers to help to accelerate the pace of industrial development. So here we are talking about that industrial development के लिए public enterprises क्या करती हैं। तो जब कंट्री में बहुत रेयर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं, स्टार्टअप जिनके होते हैं, या फिर उनके पास स्किल्ड लेबर की काफी ज्यादा कमी होती है, या फिर जो रिक्वायर्ड है आपके लिए वो नहीं है प्रॉपर, मतलब जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके डेवलपमेंट की इंडस्ट्रीज की, अगर आपके पास लेबर नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में कई बार गवर्नमेंट खुद से अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करती हैं और उसके बाद फॉरेन स्किल्ड लेबर्स को इनवाइट करती हैं। फॉरेन स्किल्ड लेबर का मतलब है जो इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर से लेबर्स को बुलाया जाता है। और क्यों ये चीज होता है? टू इंक्रीज और इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टू एक्सेलरेट और फॉर रन द इंडस्ट्रीज, ठीक है? तो इसके लिए कई बार ये प्रोविजंस को भी अडॉप्ट करती है आपकी गवर्नमेंट। एंड इट ऑल्सो मे अट्रैक्ट वेरी इफिशिएंट पर्सनल। व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कि इफिशिएंट जो लोग होंगे जो आपकी इंडस्ट्रीज के लिए हेल्पफुल हैं, उनको कई बार ये क्या करते हैं, अपनी कंट्री में इनवाइट करते हैं। और इससे और साथ साथ में कई बार ये हाई सैलरीज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर सर्विस कंडीशंस इनको देते हैं ताकि वो हमारे कंट्री में रहकर हमारी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए काम कर पाए। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए समहाउ दैट इंडिया इज आल्सो बेसिकली बोल सकते हैं कि दे आर मतलब because of the globalization we are able to export the people as well. So in short they are doing such kind of thing. They are basically calling for the foreign skilled laborers personnel so that they are able to help us for the industrial development, and for that even the government is basically paying a very high salary to those people. मतलब उनको काफी ज्यादा हाई सैलरी भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि हमारे इंडिया के लिए वो काम करे, हमारे कंट्री के लिए वो काम करे। ओके, नेक्स्ट वन इज नो वेस्ट। तो नो वेस्ट तो पहले ही पता लगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ही कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज में आपके यहाँ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आ जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाएंगे, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। इकोनॉमिक रिसोर्सेज की यहाँ बात हो रही है, तो all waste of economic resources in form of existence of excess capacity in the private sector industries, competitive advertisement can be eliminated if they are nationalized and run by the government. So basically, if the company, if the enterprise is nationalized or it is considered under the public enterprises, the economic resources waste will be minimized. ठीक है, minimize हो जाएगा. Okay. Next one is check on concentration of economic power and the private monopoly. Acha, what is the meaning of monopoly? I guess you all know that monopoly is a situation in the market where there is only one company which is in the higher, बोल सकते हैं, in that authority that they are able to set the price in the market. आ रही है बात समझ में? So that is the monopoly situation, जहां पर एक ही कंपनी का बस नाम हो जाता है और एक ही कंपनी का
बेसिकली प्रोडक्ट सेल होता है और वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पर दे आर एबल टू कंट्रोल द सप्लाई डिमांड प्राइस इन द मार्केट। बोल सकते हैं इकोनॉमिक जो भी आपके इकोनॉमिक जो भी चीजें होंगी ना, दे आर एबल टू कंट्रोल इट। तो मोनोपोली से कई बार ना एक्सप्लॉयटेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है मोनोपोली राइट। कैसे? क्योंकि वो कंपनी या क्या करती है कि वो अपने हिसाब से प्राइस सेट कर देती है एंड दैट कैन बी हाई एज वेल। ठीक है, तो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मैंने उसमें बताया था कि कई बार मोनोपोली जब एसेंशियल कमोडिटीज पे आने लग जाता है, जब प्राइस हाई हो जाता है, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर लेती है क्योंकि वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए सोचती है ना। सैनिटाइजर वाला एग्जाम्पल आई गेस याद होगा तुम लोगों को। तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है, चेक ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड प्राइवेट मोनोपोली। जो पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं दे कैन हेल्प टू चेक द कंसेंट, जो भी इकोनॉमिक पावर किसके हाथ में है, कौन कौन से कंपनीज और एंटरप्राइजेस के हाथ में जो कि प्राइवेट है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं, उसने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो कंसंट्रेशन है, पैसों का जो कंसंट्रेशन है, वो कुछ कंपनीज के हाथ में रह जाता है बिकॉज ऑफ द, बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल ऑफ द वेल्थ इन द कंट्री। दैट इज इवन गोइंग ऑन, वी ऑल आर एबल टू सी दैट। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस चेक करती है कि किसके हाथ में इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा हाई है और किसमें कौन बहुत ज्यादा प्राइवेट मोनोपोलीज इंक्रीज कर रहा है। तो दे वांट टू मिनिमाइज इट। ठीक है, मिनिमाइज करना चाहती है कौन? पब्लिक इंटरप्राइजेस। सो दे आर डूइंग द चेकिंग और इंस्पेक्शन वर्क एज वेल। Okay, so balanced development, it means, what is the meaning of balanced development? I already told you that in India there are 29 states right now. Okay, 29 state है आपका, 6 union territory है। तो यहाँ पर आपका हर एक स्टेट और यूटी इक्वली प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, इक्वली प्रोस्पेरस नहीं है, इक्वली वहां पर इकोनॉमिक्स बेनिफिट नहीं है, इकोनॉमिकल सिचुएशन नहीं है। बहुत सारे अभी भी ऐसे स्टेट्स हैं जो बैकवर्ड स्टेट्स है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज लैक ऑफ द रिसोर्सेज। तो देयर आर सो मेनी, ऐसे बहुत सारे आपके स्टेट्स है। तो जैसे एग्जाम्पल में बिहार भी आपका बैकवर्ड स्टेट में ही आता है, उड़ीसा दैट इज इन द बैकवर्ड स्टेट। तो वी कैन से दैट कि कई बार जो इस टाइप के जो इंटरप्राइजेस हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं, दे बिलीव इन द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि साउथ का रीजन को डेवलप कर रहे हैं, नॉर्थ के रीजन को डेवलप ही नहीं कर रहे हैं, ईस्ट को डेवलप कर रहे हैं, वेस्ट को डेवलप ही नहीं कर रहे हैं। नो, दिस इज, दे ऑलवेज वांट टू डेवलप द एवरी एरिया ऑफ द कंट्री। वो चाहते हैं कि हर एक एरिया में बैलेंस डेवलपमेंट चले। ठीक है, जो रीजनल इनकम इनइक्वालिटीज है, ये सब चीजें रिड्यूस हो, सब जगह पे बेटर डेवलपमेंट हो, हर एक रीजन में हो। और इसी वजह से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जगह पे कंट्री ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वैसे जोन है जहां पर अगर आप कोई इंडस्ट्री को स्टार्ट करोगे, सेटअप करोगे, तो आपको उसके लिए सब्सिडी मिलेगा, आपको टैक्स पे कंसेशन मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री या फिर लो कॉस्ट लोन प्रोवाइड होगा ताकि आप वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करो, है ना। So in short, the public enterprises also believe in the balanced development. They contribute to the balanced regional development, or by locating the public enterprises in the various areas. Like public enterprises को हर एक एरिया में सेटअप करके, बहुत सारे एरिया में सेटअप करके, they want to manage the बोल सकते हैं रीजनल एरियाज और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए, और दे वांट टू रिड्यूस द रीजनल इनकम इनइक्वालिटी। आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट समझ में आता है ना कि हर एक एरिया में प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए। और कई बार इसका रीजन आपके लैक ऑफ रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन लैक ऑफ रिसोर्सेस के साथ साथ कई बार ज्योग्राफिकल हिंड्रेंसेस आर आल्सो द रीजन। ज्योग्राफिकल हिंड्रेंसेस का मतलब होता है जैसे काफी पहाड़ी एरिया है, तो वैसे एरिया में आपके सारे रिसोर्सेस आपको अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कई बार होता है नेचुरल रिसोर्सेस तो अवेलेबल है, लेकिन बाकी आपके पास टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप इंडस्ट्रीज को रन नहीं कर पाते हो। So we can say that there are geographical hindrances as well as there are so many reasons. That's why some areas are not yet developed in country. So they promote the balanced regional development. हर एक एरिया प्रॉपरली डेवलप हो, और इसके लिए वो पब्लिक इंटरप्राइजेस को बहुत जगह पे लोकेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। आगे बात समझ में क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट क्लियर हो गया सबको? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट क्लियर है? चलिए, यस मैम। अल्टीमेट कंट्रोल बाय पीपल, अल्टीमेट कंट्रोल बाय पीपल।
अल्टीमेट कंट्रोल बाय पीपल, ठीक है। सो हेंस वी ऑल नो जो वर्किंग है आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस में, that is subject to criticism of the people and the member of parliament. So hence there is anything wrong in working of public enterprises, it would be set right. ठीक है, so the public enterprises are ultimately controlled by the people themselves. So in short we can say that the public enterprises is basically set up for the public only. So if there is any kind of problem, so it can be, the voice can be raised from the public side as well. क्लियर हो गई बात समझ में? जब सरकार की कोई भी इंटरप्राइज में प्रॉब्लम है तो पब्लिक भी इसके लिए इश्यू रेज कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू इनको सेटअप किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में किसकी होती है? लोगों की होती है, पीपल की होती है, पब्लिक की होती है, इलेक्ट होते हैं उन्हीं के द्वारा ना। So in short, if there is any kind of problem with these enterprises, what the public can do, they can basically raise the issues against that. Issues start करेगा, उसके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट करेगा, और उसके बाद दे हैव टू चेंज इट, दे कैन सेट इट राइट, उसको सही करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आगे बात समझ में? क्लियर हो गया एवरीवन? सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Advantages of the public enterprises. Anyone have any doubt in any of this point? कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसको रिपीट करूं मैं? एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए। Anyone have any doubt in any of the points? If anyone Yes, wants to ma'am. repeat it, yes, raise your hand and please ask. Yes, Anisha. Yes, ma'am. Check on concentration of economic power. Which one? Check on concentration of economic power and private monopoly. Yes. Let me Yes, elaborate it. जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस है वो चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर ने मोनोपोली क्रिएट कर लिया है। मोनोपोली का मतलब है कि वही सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट भी कई बार मोनोपोली क्रिएट करती है, क्योंकि इन लार्ज लेवल पे लोग उसको यूज कर रहे होते हैं। जैसे रेलवेज ऐसा सेक्टर है जो हर एक कोई यूज करता है, कंट्री का हर एक सिटीजन लगभग यूज करता है। और ऐसे सिचुएशन में अगर हम इसको मतलब प्राइवेट बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को देना इट इज नॉट इफिशिएंट फॉर देम, so somehow they are creating the monopoly, or you can say they are basically reserving some sectors for the government only. But यहाँ पर प्राइवेट मोनोपोली जो है, it can, if it will create it, it is going to exploit the people, because मोनोपोली हो जाएगा तो प्राइस अपने हिसाब से सेट करेंगे। तो यहाँ पर वो पब्लिक एंटरप्राइजेस जो हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग द इंस्पेक्शन वर्क। कई बार वो इंस्पेक्शन का काम करते हैं और वो चेक करते हैं कि जो इकोनॉमिक पावर है, जो कॉमर्शियल इकोनॉमिक पावर है, जो प्रोडक्ट प्राइस लेवल, प्रोडक्ट प्राइस, आपका मार्केट, ये सबको कोई ऐसा तो नहीं कि कोई कुछ ही इंडस्ट्रीज जो है वो अपने पास कंसंट्रेट करके उन्होंने रखा है। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कुछ ही इंडिविजुअल्स ऐसे हैं या कुछ ही ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने मोनोपोलिस क्रिएट कर रखा है और उनके मोनोपोलिस का ग्रोथ हो रहा है। तो दे आर डूइंग द इंस्पेक्शन और चेकिंग वर्क एज वेल। ठीक है, आगे बात समझ में? फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल और फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर्स। क्लियर हो गया सबको? Yes, समझ में आ गया? और कोई पॉइंट? Yes, ma'am. किसी को भी कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? Yes, ma'am. Balanced development. बैलेंस डेवलपमेंट। अच्छा सुनो, बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे कि आपका जो एरिया है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, लेकिन सबका इक्वल सिचुएशन नहीं है क्या इक्वल सिचुएशन? आप कंपैरेटिवली देखिए, मेट्रोपॉलिटन जो भी आपके सिटीज हैं, जैसे आपका वेस्ट बंगाल है, कोलकाता है, ये सब ज्यादा कंपैरेटिवली डेवलप्ड है। आपका दिल्ली ज्यादा डेवलप्ड है, आपका चेन्नई वगैरह जो आपके 4 मेजर सिटीज हैं वो तो डेवलप्ड हैं ही। उसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स हैं जो प्रोस्पेरस हैं, जो बोल सकते हैं रिच हैं, इकोनॉमिक पावर बेटर है उनका, जैसे बैंगलोर हम कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट इज द IT हब। तो ये सिचुएशन जब है तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड भी हैं, यानी जहां पर आपके रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपका इकोनॉमिक जो बोल सकते हैं सिचुएशन बेटर नहीं है। तो कभी भी जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो ऐसा नहीं चाहती है कि कुछ स्टेट जो है वो प्रोस्पेरस बने और बाकी स्टेट जो है वो बैकवर्ड ही रहे। दे बिलीव ऑन द रीजनल, इक्वल रीजनल डेवलपमेंट, कि हर एक एरिया में प्रॉपरली डेवलपमेंट हो। इसीलिए गवर्नमेंट अपने साइड से क्या करती है कि बहुत पब्लिक इंटरप्राइजेस को
वो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टेट्स के जगह पे वो लगभग हर स्टेट्स में स्टैब्लिश करती है। आ रही बात समझ में? अगर आप एग्जाम्पल में, अगर आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लगभग मेजर स्टेट्स में हर जगह पे उनके रीजनल ऑफिसेस हैं, है ना, रीजनल ऑफिसेस लगभग हर जगह पे है। हाँ, तो दे बिलीव ऑन दैट, दे वांट अ रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट कि हर एक स्टेट, हर एक एरिया और आपका रूरल एरिया, अर्बन एरिया सब प्रॉपरली डेवलप हो। इसीलिए वो पब्लिक इंटरप्राइजेस को बहुत सारे एरियाज में सेटअप करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ऑफिस सेटअप करते हैं उसका। आगे बात समझ में? माही? Yes, ma'am. माही समझ में आगे बेटा? Yes, ma'am. हाँ, और कई बार ये भी चीज होता है कि आपका जो ये तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पब्लिक इंटरप्राइजेस से रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट वहां पर होगा, क्योंकि कई बार वहां पर ज्योग्राफिकल हिंड्रेंसेस होते हैं, बहुत सारी रुकावटें होती हैं, रिसोर्सेज के प्रॉब्लम होते हैं, या फिर बहुत डिफिकल्ट एरियाज होता है, वहां पर लोगों का रहना मुश्किल है। तो ऐसे सिचुएशन में भी कई बार आपका डेवलपमेंट प्रॉपरली उन एरियाज का नहीं हो पाता है, लेकिन अपनी तरफ से विथ पब्लिक इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ट्राई टू बैलेंस द डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल एरियाज। आई गेस क्लियर हो गया होगा सबको पॉइंट? यस, एनीवन एल्स? किसी को भी कोई डाउट किसी भी पॉइंट में? पब्लिक इंटरप्राइजेस, तो सबसे पहला इसका डीमेरिट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, so we all knows that if we'll talk about the private companies, वहां का मैनेजमेंट कंपैरेटिवली आपके पब्लिक इंटरप्राइज से बेटर है, क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल लेवल पे चीजें चल रही होती हैं। वहां पर फंक्शंस, आपके जितने भी मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, सब कुछ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, यानी उनको फाइनली गोल अचीव करना है। लेकिन यहाँ पर जो कई बार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, यहाँ पर आपके पब्लिक इंटरप्राइजेस में सारे गवर्नमेंट जॉब के लोग होते हैं, तो दे आर टेकिंग वेरी लॉन्ग टाइम in taking decision as well as action. कई बार they are doing the procrastination, they are delaying the things because their job is somehow secure. So they don't want to improve their performance because they know कि आपकी जॉब तो कहीं नहीं जाएगी. So the mentality they have, sometimes they are delaying the things. ठीक है, अपनी तरफ से भी they are delaying the things and somehow there is also some reasons. इसके अलावा भी कुछ reasons है, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपके तुरंत से डिसीजन नहीं लिया जा सकता बिकॉज सब चीज का प्रोसीजर है, आपको कई बार उसको आगे तक पहुंचाना होता है, फाइल्स कई बार जाती है आगे तक। तो ऐसी सिचुएशन में आप डिसीजन एट द टाइम बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। और मैंने आपको बताया भी था कि आपके जैसे डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट या फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्रीज के द्वारा कंट्रोल होता है। अब ऐसे सिचुएशन में जो पूरी फाइल जो है वो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स में घूमती रहती है और इसी वजह से डिसीजन लेने में कई बार डिले हो जाता है और कई बार पार्लियामेंट में जाकर के डिसीजन लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ द मिनिस्ट्री, राइट, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर जो आपकी मैनेजमेंट है वो कई बार इनएफिशिएंट हो जाती है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स क्विकली, टेक द डिसीजन क्विकली एंड दे आर टेकिंग लॉन्ग टाइम, they are delaying the thing। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? तो है जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है वो कई बार एक्सेसिव सोशल कॉस्ट, उनका ऑपरेशन पे तो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, सोशल कॉस्ट पे कई बार ये चलता है। सोशल कॉस्ट का मतलब है समाज को इसके लिए भुगतान करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप ट्रेन के लिए बैठे हो तो आपका ट्रेन 5 घंटा लेट आ रहा है, तो हु इज बेसिकली फेसिंग दैट? ऑब्वियसली द पीपल। So this may be so because all of them are not possess the business experience। मे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑफिशियल्स है, दे आर ट्रेन्ड प्रॉपर्ली, देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। सो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इज देयर। सेकंड वन इज नो इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क। नो इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क। कई बार पब्लिक इंटरप्राइजेस जो है दे मे नॉट क्रिएट इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क फॉर देयर वर्कर्स। जो मैनेजर्स है मे नॉट टेक एनी रिस्क, दिस इज बिकॉज देयर एक्ट्स आर क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको बोलूंगी ये पॉइंट से ज्यादा अच्छा ये लिख सकते हो कि दे विल गेट द इंसेंटिव आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये भी होता है कई बार रीजन। देखो, पहली चीज कि इनकी सैलरी तो सही होती है, इनकी जो इनको जो वेजेस मिलता है दैट इज ओके, बट इनके कुछ एडिशनल इंसेंटिव्स नहीं है इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, बल्कि ये प्राइवेट कंपनीज में होता है। जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव पता है क्या होता है?
दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। अगर आपको टारगेट मिला और आपने उस पर अचीव कर लिया, इट मीन्स दैट यू आर द बेटर परफॉर्मर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो यू विल गेट सम इंसेंटिव और सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट, राइट? बट द सेम सिचुएशन इज नॉट इन द पब्लिक एंटरप्राइजेस, देयर इज नो सीन ऑफ इंसेंटिव। मतलब इंसेंटिव नहीं है तो परफॉर्मेंस नहीं है, इन शॉर्ट, ठीक है? कई बार बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता है, बहुत ज्यादा काम होता है, लोग काम करते हैं, लेकिन स्टिल उनको कोई इंसेंटिव का प्रावधान गवर्नमेंट की तरफ से उनको नहीं मिलता है, और इसी सिचुएशन की वजह से कई बार दे आर डीमोटिवेटेड टुवर्ड देयर वर्क। वो अपने काम के लिए इतने डीमोटिवेटेड होते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? और एक चीज और कि अगर उनको कभी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट या पैसे मिलते भी हैं तो बहुत बार बहुत डिले होकर उनको मिलता है, लाइक आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है? कई जगह पे तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, उनको 1-1, 2-2 साल के बाद पैसे मिलते हैं। समझ रहे हो चीजों को? सो डिलेइंग इन दिस, डिले होता है ये सारी चीजों में, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपका जो बोल सकते हैं डीमोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स और एम्प्लॉइज इन द पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? पॉइंट सबको क्लियर है? थर्ड वन इज ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म। तो ब्यूरोक्रेसी और रेड टैपिज्म एंड करप्शन जो है, ये बहुत ज्यादा ग्रोथ हो चुका है पब्लिक एंटरप्राइजेस में, क्योंकि हर काम में डिले होता है, कोई भी फाइल जल्दी पास नहीं होता है, तो करप्शन आप समझ ही रहोगे, रिश्वत देना, ये सब चीजें आम चीज हो गई है पब्लिक एंटरप्राइजेस में। तो कहीं ना कहीं करप्शन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पीपल है, देयर जॉब इज सिक्योर, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट समहाउ. But nowadays there are so many action is also taken by the government in the situation of these kinds of things. So bureaucrats जो हैं may not take the quick action because they followed the established procedures. बहुत सारे bureaucrats जो हैं, जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो तुरंत डिसीजन नहीं ले सकते, तो उनको प्रोसीजर को मेंटेन करना पड़ता है। इसी वजह से हेंस दे कॉज लॉसेस टू द पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसीलिए पब्लिक एंटरप्राइजेस में कई बार लॉस भी चलता है, हर चीज डिले में चलता है, तो कोई भी चीज क्विकली अडॉप्ट ही नहीं होता है, इन शॉर्ट, ठीक है? तो इट इन्वॉल्व द बर्डन टू द टैक्स पेयर्स। तो ब्यूरोक्रेसी जो है, आपका ब्यूरोक्रेट कौन होते हैं, जैसे आईएएस वगैरह, दे आर ब्यूरोक्रेट, so they are following every procedures of the government or every procedure to fulfill the things in the public enterprises. And corruption is very much high because the things are delaying and some people want the work as soon as possible. Because of that only the people are paying some kind of, बोल सकते हैं रिश्वत वगैरह जो प्रोवाइड करते देते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पब्लिक एंटरप्राइजेस में स्प्रेड हो चुकी है, फैल चुकी है। So this is known as bureaucracy and red tapism. Red tapism का मतलब वही होता है डिले करना, मैनेजमेंट सही नहीं होना, करप्शन होना। तो दिस इज रेड टैपिज्म। क्लियर हो गई बात? दे आर obstructing the growth of the public enterprises in short. So we all know that it is for the social welfare, but इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट भी थोड़ा भी नहीं हो रहा है ताकि आपका इंटरप्राइजेस एफिशिएंटली रन कर पाए। तो गवर्नमेंट के ऊपर इस टाइप के इंटरप्राइजेस का बर्डन बढ़ता जाता है जब आपके प्रॉफिट ज्यादा आपका लॉस हो, है ना? तो कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है वो रुका हुआ है बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ द रेड टैपिज्म। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? मेंटेन बाय द या फिर says by the government, which is basically there in the protocol, so they have to follow it. So we can say that these three are the demerits. There are so many demerits. We are going to discuss it in the next class. Anyone have any doubt in any of the point whatever we discussed today? किसी को कुछ पूछना है जो समझ नहीं आया हो? कोई भी पॉइंट? यस अनीशा। यस मैम, रेड टैपिज्म में कंफ्यूजन था। हाँ बोलो मैम। रेड टैपिज्म का यहाँ पे जो आप मीनिंग बताए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, उसका मीनिंग अलग होगा। That you have to follow the rules, regulation. You are delaying the things. The corruption is going on. The people, the officials are not working properly. So this is a situation which is raised because of the red tapism. So जो आप PO में आपने पढ़ा है, that is the same thing that you have to follow the rules and regulations. ठीक है, आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, चीजों को डिले करते जाना। अगर डिले हो रहा है तो होता जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा जो रूल है गवर्नमेंट का। So रेड टैपिज्म तो वही, मैंने भी वही चीज बताया, बट आई सेड दैट द थिंग्स आर डिलेइंग बट दे आर फॉलोइंग द सेम थिंग। डिले होता रहेगा लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो करते भी रहेंगे बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर्स, बिकॉज ऑफ द स्टेप्स विच दे हैव टू टेक। तो मतलब तो दोनों का सेम ही निकला। क्लियर हो गया अनिशा? यस मैम। ठीक है, स्टेप्स को फॉलो करने के चक्कर में
है ना, वही मीनिंग हुआ सेम। ओके, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है किसी भी पॉइंट में? So in the next class, we are going to understand about the demerits of public enterprises and what are the joint sector enterprises. Okay, see you all in the next class.